Hello dear students, and I welcome you all in this next class of design of steel structures. And today I would be revising a very important topic of a stress strain diagram of a steel, and you must have studied it in basic courses. So we all know that there are two kinds of material, elastic and brittle. So every elastic material is a ductile material, and ductility is the property by which you can draw material into a wire very easily. आप क्या कर सकते हो? You can apply very high stress and such material can withstand it very easily, and they will undergo a large percentage of elongation before failure. And percentage elongation is calculated by this simple formula L minus L naught divided by L and multiplied by 100. This gives us the percentage elongation. So let us come to the stress strain diagram of this steel. So you all know that stress is represented on the y-axis and the notation is sigma and the unit is Newton per mm square or megapascal. ठीक है? And strain is represented on the x-axis. It is representation is epsilon and unit is its dimensionless quantity. And from Hooke's law we know that stress is directly proportional to strain till the point of proportional limit. ये एक condition है, आपने याद रखी होगी तो. And similarly sigma can be written as E times E is the constant modulus of elasticity, sometime also written as capital Y, E multiplied by epsilon, and this is the formula. So till this we all are aware, and today in this class we would be seeing different points and different regions under the area of stress strain curve. The origin is here, and if we take a steel specimen and start loading on it, then what we observe that the steel specimen undergo a deformation, and that deformation has a linear nature with the stress applied on it, and this happens till some limit, and that limit is called proportional limit. I represent this point by P, and the stress value corresponding to point P is called sigma PL. And in this region we can say very easily slope of this straight line is equated as Young's modulus. The stress can be easily related with strain by Young's modulus of elasticity only till point P. But our question is, what happens after point P? How does the material behave? The material still behave in an elastic manner, but this elastic manner also ends up till a point E, and E is a point which is designated as elastic limit, and the stress value corresponding to point E is sigma EL. What is difference between P and E? Proportional limit and elastic limit. See, material is actually elastic in both the regions, but what happens after P, that the stress value cannot be equated with the strain value in a linear manner. The relation of proportionality is limited only to the point P, not after P. But yes, material will remain elastic. And what do we understand by elastic behavior? You can understand it better by this curve. Okay, this is a stress strain diagram of a material, and if I say this is point P till which sigma is proportional to epsilon, and this is point E. What happens if I load the specimen from O till this point? If I have loaded, and if I remove the stress, and if I unload the structure or remove the force externally applied on it, it will regain its original shape and come back to O again. Okay. So if the material is loaded till point E, and if the external force is removed, during unloading the material will regain its shape. But if I go the stress value beyond this point E, what happens? And the material unload, then what happens? During unloading we observe
that there is some permanent residual strain develops in the body, and this strain is called residual. Okay, so this is not an elastic behavior of a material. Such a behavior is called plastic behavior. So we can say after elastic limit the plastic behavior of a steel start manifesting. अगर आपने फोर्स हटाया तो पूरा का पूरा ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड this elastic limit concept very nicely. So after elastic limit, what happens that if we go on increasing the stress, we reach to a point C dash. If I say this point as C dash, then there must be a point C also, and I designate C dash as well as C as upper yield point and lower yield point. YP means yield point. Yielding is a phenomena in which a material, when it reaches a particular value of stress, क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ये हमारी स्टील की स्पेसिमेन है, ठीक है, कोई भी रैंडम है, और हमने इस पे एक ट्रांसवर्स लोडिंग P लगा रखा है. And we know that every material is composed of many fibers inside it. Some fibers are at mid section and internal sections, and there are some fibers at extreme also. So first of all, the extreme most fiber will start yielding. सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन कहाँ होगा, एक्सट्रीम वाले फाइबर पे, और ये फाइबर क्या होगी, दिस विल स्टार्ट यील्डिंग. यील्डिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रेन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, जबकि स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स है. सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड सिग्मा वाई. सिग्मा वाई इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस. एंड यील्ड स्ट्रेस हमारे केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में 250 मेगा पास्कल होगा. इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए. मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे न्यूमेरिकल्स में सिग्मा वाई इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल यूज़ होने वाला है. ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है एक्सटर्नल फाइबर यील्ड करेगा. ठीक है, एक्सटर्नल फाइबर यील्ड कर गया, उसके बाद क्या होगा, उसके जस्ट कॉन्सिक्यूटिवली उसके जो साइड में है वो वाला फाइबर यील्ड करेगा, फिर ऊपर वाला फाइबर यील्ड करेगा, फिर उसके ऊपर वाला फाइबर यील्ड करेगा, फिर उसके ऊपर वाला फाइबर यील्ड करेगा, और सबसे ऊपर वाला फाइबर फाइनली यील्ड करेगा. तो जब तक यील्डिंग पूरी नहीं हो जाती ये स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा वाई कांस्टेंट रहेगी, और ये एक प्लेट्यू हो जाता है, एक तरीके से प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू यील्डिंग ऑफ फाइबर्स. ये डिफरेंट फाइबर्स आप देख रहे हैं ना, इनका धीरे धीरे एक 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 कर कर के सारे फाइबर्स यील्ड करते हैं, और जब तक कि पूरे फाइबर्स यील्ड न कर जाएं, क्योंकि स्टील की रिजर्व कैपेसिटी बची रहती है, जब सारे फाइबर यील्ड करेंगे तभी तो हम कहेंगे स्टील हैज़ कम्प्लीटली यील्डेड. यील्डेड मतलब अपना रिजल्ट. जैसे आप कोई एग्रीकल्चर में क्या होता है, यील्ड मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कितना आपने हार्वेस्ट किया. तो अब स्टील की जो है पूरी की पूरी यील्डिंग हो गई. एज डिज़ाइन में हम यही यूज करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ही. ठीक है, पर क्या होता है कि स्टील के पास अभी भी बहुत सारा स्ट्रेंथ बाकी होता है. तो अभी तो यील्ड ही हुआ है, यील्डिंग के बाद अभी तो डक्टिलिटी स्टील की बाकी है. जस्ट लुक एट दिस कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील. तो क्या होता है, ये जो ए पॉइंट आप देख रहे हैं, ए इज़ माई प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज़ माई इलास्टिक लिमिट, and C dash is called upper yield point and C is called lower yield point. देखिए ये दोनों पॉइंट में डिफरेंस बस यही है कि अपर यील्ड पॉइंट की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है लोअर यील्ड पॉइंट से. ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में डिज़ाइन की वैल्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोअर यील्ड पॉइंट यूज होता है. ठीक है, यही वाली वैल्यू यूज होगी. देखिए अपर यील्ड पॉइंट कब यूज होता है, जब आप एकदम ही रैपिड लोडिंग लगा रहे हैं स्पेसिमेन पे, जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता नहीं. और लोअर यील्ड पॉइंट कब ऑब्टेन होता है, जब आप ग्रेजुअल लोडिंग लगाते हैं ना स्पेसिमेन पे, तो आपको सी मिलता है.
और बाद में यही सी की वैल्यू यूज होती है। तो आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हो, एक चीज़ ध्यान से देखो ज़रा कि नीचे हमारी वैल्यू क्या है स्ट्रेन की, ठीक है, इस पे मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ। सी की वैल्यू पे क्या है स्ट्रेन, ये लगभग 0.11% है, ठीक है। और सी के बाद एक प्लेट्यू आपको दिख रहा है, ये प्लेट्यू आपको दिख रहा है कहाँ तक, डी तक, ठीक है। और सी से लेकर के डी तक का वो सफ़र है स्टील का जब एक एक कर करके उसके सारे के सारे फाइबर ईल्ड कर रहे होते हैं। और इसी बीच डिफॉर्मेशन 0.11% से कहाँ चला जाता है, 1.5%। यहाँ पे एप्सिलॉन अगर हमारा x है तो अभी हमारा एप्सिलॉन लगभग, पर क्या ईल्डिंग जब कंप्लीट हो जाती है तब स्टील के पास शक्ति नहीं होती, नहीं होती है, तब भी रिजर्व स्ट्रेंथ होता है। जब ये प्लेट्यू का रीजन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे डी पे, ठीक है, तब क्या होता है, इस डी के बाद अब जो है डक्टाइल बिहेवियर शो होने लग जाता है स्टील का। और इस डक्टाइल बिहेवियर में क्या होता है, आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन की भी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है और ये एक पॉइंट पे पहुंचती है ई पे। स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब एक वैल्यू पहुंचा ई, ई को कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। कभी कभी इस पॉइंट को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। और इस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो स्ट्रेंथ वैल्यू आती है ये लगभग होती है, कहलाती है सिग्मा यू। सिग्मा यू को कहते हैं यूटीएस। यूटीएस का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे न्यूमेरिकल्स में सिग्मा यू जो होगा ये होगा 415 मेगापास्कल। आप इस वैल्यू को याद कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स पर्पज़ के लिए, ये वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी। और स्टील को रिप्रेजेंट भी किया जाता है कभी कभी Fe415 बार्स, आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा। और लिमिट स्टेट मेथड जो होता है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी यूज करता है। आपको याद होगा जो ये सिग्मा वाई देख रहे हैं यहाँ पे WSM कहता है कि फेल हो गया स्ट्रक्चर, पर लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक हम स्टील की कैपेसिटी को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस स्ट्रेस की वैल्यू को अचीव करने पे स्टील अब टूट जाएगा, इट विल नॉट रेजिस्ट एनी मोर अमाउंट ऑफ फोर्स। अब क्या होता है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन इतना ज़्यादा आने लग जाएगा, इतना ज़्यादा आने लग जाएगा और धीरे धीरे स्ट्रेस कमता जाएगा और इट विल रीच टू अ पॉइंट F इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट एंड द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट F इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो ये उतना डिज़ाइन में यूज नहीं होता फ्रैक्चर स्ट्रेस, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको बस सिग्मा यू याद रखना है 415 मेगापास्कल और सिग्मा वाई याद रखना है 250 मेगापास्कल, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट को एक और भी नाम है जो आप याद रख सकते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ई और पॉइंट एफ के बीच में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, अगर जैसे ही आप इस वैल्यू को पहुंच चुके हैं सिग्मा यू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद, अब जो है स्टील में जो होता है यहाँ से एक नेकिंग जैसा एक फॉर्मेशन होने लग जाता है, नेक फॉर्मेशन। और जैसे जैसे आप स्टील को स्ट्रेन को बढ़ता जाता है तो स्ट्रेस कमता जाता है और ये नेकिंग बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब ये इसकी कैपेसिटी पूरी की पूरी एक्सप्लॉइट हो चुकी है और ये नेक फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा धीरे धीरे कि फाइनली स्टील विल ब्रेक एट फ्रैक्चर पॉइंट, एट फ्रैक्चर स्ट्रेस सिग्मा एफ पे जा करके ब्रेक हो जाएगी। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो वहाँ पे एक शब्द यूज होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ऐसा क्यों यूज होता है, मीन्स ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये शायद ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है। तो आखिर क्या है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो इसको समझने के लिए हम एक बार अच्छे से ज़रा समझते हैं नेक फॉर्मेशन में क्या होता है। नेक फॉर्मेशन में आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस जगह पे किसी भी जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 है। अगर मान लेते हैं A0 इज़ माई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया A0, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस अगर निकालें तो वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया, ठीक है।
So using this original value of area, this stress strain diagram which you are seeing here, this is drawn, and this diagram is called characteristic stress strain diagram. पर इस नेक फॉर्मेशन में आप क्या देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्लोली डिक्रीजिंग। एक इंस्टेंट पे अगर हम एरिया इंस्टेंटेनियस यूज करें, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एरिया एट एनी इंस्टेंट। तो नेक फॉर्मेशन के इंस्टेंट पे अगर हम ट्रू स्ट्रेस निकालें तो उसमें यूज होगा P डिवाइडेड बाई A इंस्टेंटेनियस। अगर AI की वैल्यू कमेगी तो आप बताइए मुझे सिग्मा ट्रू बढ़ेगी या नहीं। सिग्मा ट्रू बढ़ती है। तो आप इस फॉर्मूला से आप एक बार फिर से इसे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस में ओरिजिनल एरिया यूज हो रहा है जो कि कांस्टेंट है, तो ये वाला डायग्राम आता है जैसा कि आपने देखा। पर ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, इसमें एरिया कमता है तो सिग्मा भी बढ़ता जाता है। तो इस डायग्राम में ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ऑलमोस्ट D तक सब कुछ सेम रहता है, या फिर कभी कभी तो E तक भी सेम रहता है, पर इन सम केसेस डायग्राम ऑफ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिफर्स एंड इट टेक्स अ स्लाइटली हायर वैल्यू देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और E तक जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है या थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर E के बाद सिग्निफिकेंटली लार्ज होता है क्योंकि नेक फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और फाइनली एट पॉइंट F देयर इज अ फ्रैक्चर एंड इन दिस ऑल्सो फ्रैक्चर अकर्स। सो वी कैन से दिस कर्व एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड दिस कर्व, ये जो कर्व आप यहाँ से देख रहे हैं O से ले करके इस तरीके से, C से ले करके, D से ले करके हम जो E तक जा रहे हैं, और जो ये डॉटेड रीजन है इस रीजन को कहेंगे ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, नाउ all of you can, what you can do, I will provide this notes to you and you have to go through this notes very nicely। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, और आप आसानी से समझ सकते हैं, मैंने बहुत ही क्लियरली बताया प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है और ये P पॉइंट क्या है। और ये मैं बता रहा हूँ कि सिग्मा PL इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सिग्मा EL। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में ज़्यादा अंतर नहीं होता, कभी कभी दोनों को दिखाना ज़रूरी नहीं होता, पर अगर हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ग्राफ में दोनों को एक ही पॉइंट से दिखा दिया जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा कम होता है यील्डिंग स्ट्रेंथ से। अब हम आते हैं डिफरेंट रीजन्स, क्या क्या अलग रीजन्स हैं अंडर द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है ये स्ट्रेस है और इधर स्ट्रेन है और ये हमारा ओरिजिन है। और आपको मैं फास्टली रिवाइज करा देता हूँ कि देखिए, आपको मैंने बताया था कि स्टील के दो बिहेवियर होंगे, एक तो इलास्टिक बिहेवियर होगा और दूसरा प्लास्टिक बिहेवियर होगा। इलास्टिक बिहेवियर यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, हम ध्यान से देखिए। इसके बियॉन्ड अगर आप देखेंगे तो इधर प्लास्टिक बिहेवियर होगा इसके। तो हम देख सकते हैं इसमें सारे पॉइंट्स भी दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको ये पॉइंट दिख रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट का, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा PL। उसके बाद इलास्टिक लिमिट भी आपको दिख रहा है, यील्ड स्ट्रेस भी दिख रहा है। यील्ड स्ट्रेस यहाँ अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये ग्रेजुअल लोडिंग है, ठीक है। तो इस रीजन तक, इलास्टिक लिमिट तक के रीजन को हम क्या कहेंगे, इस रीजन को हम कहेंगे इलास्टिक रीजन। और ये जो यील्डिंग है इसको इस डार्क ब्राउन कलर से दिखाया गया है। ये जो प्लेट्यू का फॉर्मेशन है ये यील्डिंग रीजन कहलाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस पॉइंट D, आप देख रहे हैं दो कर्वेचर स्टार्ट हो रहा है। एक तो कर्व ये गया, दूसरा कर्व ये गया। आपको दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। नीचे वाला जो कर्व है उसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और ऊपर वाला जो कर्व है उसको कहेंगे ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रू फ्रैक्चर स्ट्रेस दिख रहा होगा, ठीक है, जबकि और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फ्रैक्चर स्ट्रेस हम लिख सकते हैं। तो ये जो रीजन कहलाता है, इस रीजन में डक्टिलिटी
स्टार्ट हो जाती है शो करना, और इसमें स्ट्रेन बढ़ता जाता है स्ट्रेस के साथ साथ। और ये जो इंटायर रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन को कहेंगे हम स्ट्रेन हार्डनिंग, और ये हमारा अल्टीमेट पॉइंट है। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस अल्टीमेट पॉइंट, दो ये जो डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है, और नेकिंग में नेक फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है विथ डिक्रीज इन स्ट्रेस। इसका एक और भी नाम है स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। एंड अगर इन तीनों रीजन को मैं कंबाइन कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि तीनों के तीनों रीजन प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट एफ फ्रैक्चर हैपन्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको भी थोड़ा सा देख लें। सारे जो इलास्टिक रीजन्स हैं, प्लास्टिक रीजन्स हैं, यील्डिंग रीजन है, और स्ट्रेन हार्डनिंग है, नेकिंग है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। सो आई होप फ्रॉम टुडेज क्लास यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. We have discussed each and every point starting from the origin to every point till fracture point, and different kinds of region and different behaviors of steel in those regions we have discussed. तो इस तरीके के behavior of steel होने का कारण क्या है वो भी आज काफ़ी एक लंबी चर्चा की है उस पर. So I hope you must have now understand this topic very nicely. And just go through this PDF I will share you on Moodle, and from there you can download. And I keep this class here only, and in the next class we will meet very soon with a new topic and new zeal. Till that, stay safe and stay tuned. Thank you.